Income tax for assessment year 24 to 25. Now I am explaining residential status. Already I have completed 5 problems. Now today we'll discuss 6th problem. Mr. Page number A84. Mr. Jagdish, an Indian citizen who is appointed as a senior scientific officer by the government of Kenya, left India for the first time on 26 September 2022 for joining his duty in Kenya. During the previous year 23-24, he came to India for 160 days. It is clearly mentioned here. 2022 को उन्होंने 26 सितंबर को गए केनिया को. ठीक है, अपने को कंसिडर करना नहीं है 22 प्रीवियस ईयर का ही 23-24 रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रॉब्लम जब भी आते आपको इंडिविजुअल के HUF के लिए डिफरेंट रूल रहता. इंडिविजुअल के लिए अगर कोई पर्सन का नेम दे रहे तो यू हैव टू कंसिडर 2023-24 में उन्होंने कितने डेज इंडिया में रहे. So in this question it is clearly mentioned that in the previous year 2023-24 he came to India for 160 days. Determines his residential status for the assessment year 24-25. So Mr. Jagdish, this is the simple problem. You can get 4 marks if you listen once carefully my videos. Then easily you can attempt short questions and long problems also. Mr. Jagdish. Problem number 6, special category. The person, Indian citizen who left abroad, that comes under special category if Indian citizen going abroad. So Mr. Jagdish is a SSC, comes under special category. He stayed in India for 160 days only. That means basic condition is not satisfied. Basic condition rule 1 what we have? 182 days. Is there no? So he is not satisfying the basic condition. Hence his residential status is non-resident. His residential status is non-resident. Next problem number 7. Mr. Johnson, an American nationalist. He is appointed in India. He is an American. He is appointed in India as senior scientific officer on 1/4/2019. On 31st January 2020, he went to Iran and deputation for a period of 1 year, leaving his family members in India. On 1st May 2020, he came back to India and took his family members with him on 30th June 2020. He returned to India and joined his original job on 2nd February 2021. Determine his residential status for the assessment year 24-25. So here whatever the information is given, 2020, we are not bother about that. We should not consider that 2019, 2020, 2021. Now he came to India on 2nd February 2021. That means he is in India only in the previous year. Where he is, how many days he stays, that we have to consider no in 2023-24. So assessment year is 24-25. We have to consider when we are finding the residential status 23-24. It's clear no? Now 7th problem. Mr. Johnson, for determining the residential status, nationality of a person is not considered. Assessment year is 24-25. Previous year is 23-24. So he joined his original job on 2nd February 2021. That means he stayed 365 days in 23-24 now. Basic condition is satisfied. So Mr. Johnson is a resident. Mr. Johnson is a resident. Now if he is a resident, additional conditions 2 out of 10 years and 730 days or more during 7 years. Mr. Johnson satisfied one basic condition and both additional conditions. So resident and ordinarily resident. These 2 additional conditions you should know. 2 out of 10 previous years. 2 out of 10 previous years and the preceding current year. Next 730 days or more during 7 years. If he is satisfying both the conditions, then we will call him as a ordinary resident. Now next problem number 8. A Hindu undivided family is living in Kanpur. A Hindu undivided family is living in Kanpur. Now till 7th problem, individual. I told you no regarding residential of status we have रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसके लिए अलग रूल रहता.
फर्म्स एसोसिएशन के लिए, कंपनीज के लिए, एवरी अदर पर्सन के लिए, ये पूरा आपको लर्न करना है। नाउ टिल 7th प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स, ए पर्सन का अपन मालूम करें, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 8th प्रॉब्लम में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए बेसिक कंडीशन इज यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। पेज नंबर A72, पेज नंबर A72, फॉर ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली the head of the family, the person who manage the business called as karta, is in that what we have to see place of control and residential status. Place of control is important. अपन individual में क्या देख रहे थे अभी तक? till now what we have seen in the case of individual, how many days in the previous year, basic conditions 182 days, 60 days plus 365 days, then additional conditions we have seen, no. But if Hindu undivided family is given to you in the question, place of control is important. What is important? Place of control. So this page number A72, this point is important if you are getting the question Hindu undivided family. It's clear? Wholly in India, that means the manage and control, the karta is staying in India and managing wholly in India is when then he is called, it is called as resident. If wholly outside India, the karta is staying outside the India and from there, from other country, he is managing his business in India, then he is called, that Hindu undivided family business, we call it as non-resident. Then partly in India and partly out of India, then resident only. इट्स क्लियर नो। अगर आपको एग्जाम में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम करो बोले तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखना है। अगर पूरा बिजनेस प्लेस ऑफ कंट्रोल पे डिपेंड है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को आपको डिसाइड करने के लिए प्लेस ऑफ कंट्रोल कहाँ है देखना है आपको। अगर होली इंडिया से अगर कंट्रोल हो रहा उनका बिजनेस तो रेसिडेंट में आता वो, अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा तो नॉन रेसिडेंट रहता, अगर पार्टली इंडिया है पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो भी रेसिडेंट है। इट्स क्लियर नो। पेज नंबर A72। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिविंग इन कानपुर, कर्ता ऑफ द फैमिली विजिटेड सिंगापुर फ्रॉम 10/23 to 1/7/24, determine HUF residential status for the assessment year 24 to 25. So in this problem number 8, HUF का प्रॉब्लम रहा तो आपको प्लेस ऑफ कंट्रोल देखना है। पार्टली इन इंडिया पार्टली आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में अपने को पार्टली इंडिया तो पार्टली इंडिया पार्टली आउट ऑफ इंडिया रेसिडेंट रहते, हैंस HUF इज रेसिडेंट। इन द एब्सेंस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, करता जो है सो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे बोल के अपन, दैट मीन्स 2 out of 10 years in the past stayed in India and 730 days or more during last 7 years preceding to the relevant previous year. रेसिडेंट स्टेटस क्या रहता? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता, ठीक है। अगर रेसिडेंट आ गया आपको HUF फैमिली में तो एडिशनल कंडीशंस चेक करना रहता। कुछ भी अगर अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन हम यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे कि एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे तो रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते बोल के लिखना है। HUF में क्या देखना रहता अपने को? डेज काउंट करना नहीं है, ओनली अपने को प्लेस ऑफ कंट्रोल देखना है। 3 पॉइंट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू नो, पेज नंबर A72। अगर पूरा इंडिया से कंट्रोल हो रहा तो रेसिडेंट, अगर पूरा आउटसाइड कंट्री से अगर अपने को कंट्रोल हो रहा करता बिजनेस को मैनेज कर रहे तो नॉन रेसिडेंट, अगर पार्टली इंडिया पार्टली आउट ऑफ इंडिया है तो रेसिडेंट होता। HUF इज रेसिडेंट बोल के लिखना रहता आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, मिस्टर मोदी एक एडलेस मेल मेंबर है HUF फैमिली के एंड मदर एंड 4 ब्रदर्स रहते हैं इनके। द प्रॉपर्टीज एंड बिजनेस हाउस इन इंडिया ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट ही स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो ऑस्ट्रेलिया से मैनेज कर रहे हो बिजनेस को। प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आए हो 15/6/2023 को, आफ्टर 15 ईयर फिर लेफ्ट कर इंडिया को, तो अपने को प्रीवियस ईयर में उन्होंने आए उससे कंसिडर करना रहता। लेकिन उन्होंने मेन बिजनेस को कहाँ से मैनेज कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया से मैनेज कर रहे 20 ईयर से, वहीं पर रह के वहाँ ये बिजनेस को पूरा हैंडल कर रहे। तो अपने को HUF की प्रॉब्लम में डेज काउंट करना नहीं रहता, प्रीवियस ईयर में करता कहाँ पर है वो भी देखना नहीं रहता अपने को। उन्होंने ऑलरेडी ये बिजनेस जो भी रहता मेनली कैसा मैनेज हो रहा वो कंसिडर करने का रहता, ठीक है। तो अपने को 9th बीट में अपने को मिस्टर मोदी बेसिक कंडीशन उनका प्लेस ऑफ कंट्रोल क्या है? होली आउटसाइड इंडिया है ऑस्ट्रेलिया से, तो नॉन रेसिडेंट, क्लियरली नॉन रेसिडेंट होते हो, तो हेंस HUF इज नॉन रेसिडेंट बोल के लिखना है अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, श्री अरुण कुमार बंग रेसिडेंट इन दिल्ली, दिल्ली के रेसिडेंट है ये, करता जो है ना HUF सिंस 1992 से, लेकिन द बिजनेस प्रॉपर्टी आर इन चेन्नई एंड प्रॉपर्टी थोड़ी इनकी मुंबई में है एंड अदर जनरेटिंग एसेट्स आर इन हैदराबाद। ही मैनेज द फैमिली अफेयर्स फॉर दिल्ली थ्रू द SSC ऑफ हिज ब्रदर्स एंड पेड स्टाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ही मैनेज फ्रॉम दिल्ली एंड नेपाल, दिल्ली और नेपाल से मैनेज करे उन्होंने बिजनेस। हिज पर्सनल रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है उन्होंने।
for this year, but he was resident and ordinary resident थे उन्होंने since 1992. Determine the residential status of HUF. ठीक है, 2023 को he managed from Delhi and Nepal. His personal residential status is non-resident for this year. ये ईयर के लिए उनका residential status non-resident है. लेकिन this is problem number 10th. श्री अरुण कुमार बंग. सो प्लेस ऑफ कंट्रोल क्या है, दिल्ली और नेपाल से करे हो तो रेसिडेंट में आते. ठीक है ना, दिल्ली और नेपाल. पार्टली इंडिया से करे हो, पार्टली आउट ऑफ इंडिया से करे हो तो कहीं में आता, रेसिडेंट में आता. एडिशनल कंडीशंस, दो कंडीशंस क्या है, 2 out of 10 years प्रीसीडिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years. सेम इंडिविजुअल्स के बेसिक कंडीशंस अप्लाई हो रहे. सो एक्सक्लूडिंग प्रीवियस. करता रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर में का अपने को नहीं देखना है, जो नॉन रेसिडेंट है उन्होंने पहले तो दिल्ली और नेपाल से जो करे उसमें रेसिडेंट आ गए उन्होंने. करता रेसिडेंशियल स्टेटस इन द पास्ट 25 years का रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उन्होंने. तो जब मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हो तो HUF इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आता. करंट ईयर का अपने को कंसीडर करने का नहीं है उसमें. नॉन रेसिडेंट जो क्वेश्चन में दिया अपने को जस्ट वो कंफ्यूज करने के लिए है. पार्टली इंडिया पार्टली आउट ऑफ इंडिया तो रेसिडेंट. बेसिक एडिशनल 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं उनके, क्योंकि उन्होंने रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होते हैं, जब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो ही होते. ठीक है ना, सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशंस मींस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उन्होंने प्रीवियस ईयर के लिए भी.